خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت سمے کے لیے، وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے. داؤد صاحب، مائک نمبر 6. اسپیشلی آج کا یہ خوبصورت فتح مند دن جس میں ہمارا منجی، ہمارا چھڑانے والا، بچانے والا، نجات دینے والا ہمارا مسیح فاتحانہ طور پر موت، قبر، شیطان کو ہرا کر آسمانوں پر اپنے باپ کے دانے ہاتھ جا بیٹھا. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک وہ ہمارے درمیان رہا. 40 days ہمارے درمیان رہا، اور پھر کلام کے مطابق وہ جی اٹھا اور پھر اپنے باپ کے پاس واپس اس تخت پر براجمہ ہے، اور جہاں سے وہ پھر آئے گا. آمین. ہم شکر گزار اپنی چرچ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ہیوسٹن میں تمام چرچز نے مل کر جو ایک بہت بڑا کام شروع کیا ریوائیو ہیوسٹن کے نام سے. ان سارے چرچز کے لیے شکر گزار ہیں کہ سارے اکٹھے ہوئے اور وہ گلیوں میں گئے، بازاروں میں گئے، چوکوں پر کھڑے ہوئے، مسیح کو ڈکلیئر کیا، اس کی خوشخبری کے پیغام کو پھیلایا انہوں نے، جس میں ہم بھی تھے ایک دن کے لیے. لیکن دیکھیں وہ پچھلی 40 دن سے یہ کام کر رہے، 50 دن تک جائیں گے. سیٹرڈے کو سیلیبریشن کر رہے ہیں سارے چرچز مل کر. اسٹیفرڈ میں چرچ ہے، نیو واٹر لائف کے نام سے چرچ، بیتل سیمول، پیسٹر سیمول کا چرچ ہے. وہاں پر ہم جمع ہوں گے. 10 بجے سروس شروع ہو جائے گی، جس میں ہمارا چرچ بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اور باقی چرچز بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. اور یہ خدا کے حکم کو جب پورا کیا کہ جاؤ خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک لے کر جاؤ، اور یہی دن تھا، آج کا ہی دن تھا جب خدا یسوع مسیح نے یہ پیغام ہمیں دیا تھا. آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اس نے یہی پیغام دیا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور پھر جاتے وقت اس نے یہ فرمایا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور وہی پیغام کیری کر رہے ہیں. ہمارا چرچ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور میری خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی کہ اگر ہم چرچ کے لوگ مل کر وہاں پر پہنچیں. اور سب سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، وہاں پر بہت بڑے بڑے پریچر، بڑے نام آ رہے ہیں. ٹرننگ پوائنٹ USA، آپ کو پتہ ہے چارلی کرک، ان کا پریزیڈنٹ وہاں پر ہوگا، اور بھی 2-3 بڑے نام ہیں وہاں پر جو ورلڈ فیمس نام ہوں گے، وہاں پہ موجود ہوں گے. اور چرچ ایمینول چرچ آف گاڈ کوائر وہاں پہ ورشپ کرے گی. So I hope this time I will see some faces there. Last time there was nobody, but I hope so کہ this time ہم وہاں پر ہوں گے، کیونکہ ہم مسیح کے پیغام کو، یونٹی کے پیغام کو، چرچ جو باڈی ہے وہ اکٹھے ہو کر خداوند کے نام کو جلال دیں گے. ڈفرنٹ لینگویجز کے لوگ ہوں گے، ڈفرنٹ نیشنز کے لوگ ہوں گے، اور وہاں پر ہم ایک ہی چھت کے نیچے خداوند کی تعظیم کریں گے. آمین. تو اگلا سنڈے کون سا سنڈے ہے؟ ڈے آف پینٹیکاسٹ. اس سے ایک دن پہلے سیٹرڈے کو 23 مئی کو صبح 10 بجے وہاں پر شروع ہو جائے گی ورشپ. دیٹ مین وی نیڈ ٹو بی دیئر لائک 9:30. تو گھروں سے کتنے بجے نکلیں گے ہم؟ 8:30. ہاں 8 بجے اٹھ جائیں، 8:30 نکل چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پر جا کے اپنا ساؤنڈ وغیرہ سیٹ چیک کر لیں. آمین، اگر آ سکتے ہیں. اور جب آسمان پر خدا یسوع مسیح اٹھائے جا رہے تھے نا، شاگرد پریشان ہو گئے، دکھی ہوئے. ان کا مالک، ان کا خداوند ان کے ساتھ رہا ہے،
मालिक और खुदावंद को उन्होंने काम करते देखा है, अपने मालिक और खुदावंद को कुदरत के साथ इस्तेमाल होते देखा है। उसने किस किस तरह बीमारों को हील किया, किस किस तरीके से उसने चंगाई दी, किस किस तरीके से उन्हें रिस्टोर किया, और उसने मुर्दों को जिंदा किया, जिंदगी दी, गुनाहों को माफ किया। वो बड़े ही शादमान और बड़े ही प्राउड फील कर रहे थे जब यीशु मसीह के साथ अपने मालिक और खुदावंद के साथ चल रहे थे। लास्ट संडे ही एक हमारी बहन है, उसने मुझे ये बात रिमाइंड कराई कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कभी भी उसको यीशु नहीं कहा था, मालिक कहा है, खुदावंद कहा है। हम बड़ी आसानी के साथ, बड़ी कैजुअली, रेवरेंस के बगैर ही उसको बड़े डिफरेंट एंगल से पुकार लेते हैं, तू, यीशु, ये वो। थोड़ा सा जब हम पाक रूह की गाइडेंस में चलना शुरू करते हैं ना, तो रूह फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताना शुरू कर देता है कि आप खुदा के साथ और क्लोज जब जाना शुरू करते हैं तो आपको बरकतें मिलनी शुरू होती हैं, और खुदावंद अपने भेद और राज और मुकाशफे की नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिवील करना शुरू कर देता है। ये शागिर्द अपने मालिक, अपने खुदावंद, हमारे मुनज्जी के साथ बड़ी ही खूबसूरत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे थे जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा था। They were so happy कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते होंगे और चलते चलते रास्ते में बेवा के बेटे को जो जनाजा लेकर जा रही थी स्टॉप करते हैं और बेटा जिंदा हो जाता है, तो ये कितना फख्र महसूस कर रहे थे। देखो हम जिसके साथ जाते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसको हम खुदा मानते हैं, देखो हमारा खुदावंद इतना बड़ा है, ये काम कर सकता है, और वो इतने बड़े बड़े काम करता है। They were feeling so much proud। ऐसे ही है ना, आज भी अगर हम किसी बड़े शख्स के साथ जाएं ना, मैं तो इस फील्ड में से निकला हूं ना, सियासी तौर पर जब निकलते थे मेरे साथ को 8-10 बंदे होते थे, तो वो भी प्राउड फील करते हैं, हम जी CJ7 जीप में जा रहे हैं, आगे 2 पुलिस वाले लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, प्राउड फील करते थे ना। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये लोग चल रहे थे तो कैसा फख्र महसूस कर रहे थे, राइट? लेकिन जब यीशु मसीह पकड़ाए गए, जब यीशु मसीह के ऊपर जुल्म होना शुरू हुआ, तो ये भाग गए, रन अवे। वो जो साथ देने की कसमें खाते थे, सब कुछ हो जाए मैं तो नहीं छोड़ूंगा, वो भी छोड़ गए, इनकार कर गए, लान तान भी करना शुरू कर दी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह प्यार से भरे हुए हमारे खुदावंद है। वो जमीन पर मोहब्बत का एक, क्या कह लें आप, ऐसा मोहब्बत का एक नमूना है जो कोई और पेश नहीं कर सकता। वो मोहब्बत है। उसने उस मोहब्बत में अपने शागिर्दों को वापस रिस्टोर किया, उन्हें इनकरेज किया और उन्हें वापस उस मिशन पर लगा दिया कि लोग बच जाएं, लोग हलाक ना हो, लोग जो शैतान के कब्जा में हैं उस शैतान के कब्जा से निकल आएं और वो निजात हासिल करें, वो बच जाएं, वो हलाकत में ना जाएं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएं। तो वो लोग, वो शागिर्द जो गमगीन थे यीशु मसीह की मसलूबियत की वजह से, उसके मर जाने की वजह से, उनको खुशी शादमानी उस वक्त मिली जब कब्र पर जाकर औरतों ने गवाही दी कि नहीं, वो वहां पर नहीं है, वो जी उठा है। और फिर उनका दिल दोबारा से एनर्जाइज हुआ, और जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा देखते हैं, वो लोग जो डरे हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, वो हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए इस कदर तैयार हो जाते हैं कि अपनी जानें दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया कि जो वो कहता है वो उसने पूरा किया है। जो उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो वो जी उठा। अब आज के दिन एक अगेन उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया है।
شاگردوں کی زندگی میں ایک نیا دن، ایک نیا موڑ، ایک نیا اینگل آیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ان کو باتیں بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، ان سے سوال بھی کر رہے ہیں ابن آدم کا آنا کب ہوگا، وہ ساری خداوند یسوع مسیح ڈیٹیل دیتے ہیں. لیکن ناؤ جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح انہیں یہ کہتے ہیں کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کا پیغام سناؤ. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں. یہ لمحہ ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آتا ہے. میں بھی وہ دکھی ہیں، میں بھی وہ غمگین ہیں، ڈسپیئر ہو چکے ہیں، بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ وہ یہ سین کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ تھا، اب کیا کریں گے، ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، کس طریقے سے ہم فخر کے ساتھ وہ سارے کام کریں گے، کس طریقے سے. اب وہ کام کرنے والا تو چلا گیا، وہ زندہ کرنے والا تو چلا گیا، وہ جو بیماروں کو شفا دیتا تھا وہ تو چلا گیا. اب کیا ہوگا، اب ہماری تو ویلیو نہیں رہی، ہم تو بیکار ویسل بن گئے ہیں. لیکن ان کے اس غمگینی کے، اداسی کے عالم میں دو فرشتے آ کھڑے ہوئے. کلام میں لکھا ہے ایکٹ چیپٹر 1 ورس 9 through 11. لیکن میں اس سے پہلے پڑھوں گا، یہ پورا واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا. اعمال کی کتاب کا پہلے باب کو دیکھتے ہیں. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. بہن بھائیو، عزیزو، چرچ، آج پوری دنیا میں خدا یسوع مسیح کے اسینشن ڈے کو، آسمان پر اٹھائے جانے کو، عید سعود کو منایا جا رہا ہے. لوگ خوشی منا رہے ہیں، شادمانی منا رہے ہیں. اس وقت شاگرد پریشان دکھی تھے. دا مومنٹ وہ غمگینی کے عالم میں بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، خداوند نے خود ان سے بات کی اپنے فرشتوں کی معرفت اور کہا کہ نہ ڈونٹ وری، یہی یسوع جس کو تم زمین سے جاتے دیکھ رہے ہو آسمان پر، یہی یسوع پھر واپس آئے گا. تو ان کی امید بند گئی، ان کے اندر ایک نئی انرجی آ گئی، ایک نئی طاقت آ گئی ان کے اندر. اور پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. رائٹ، ٹھہرے رہنا. اس میں بات کریں گے اگلے سنڈے، لیکن میں چرچ کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو اس زمین پر آ کے جس نے دکھ اٹھایا، سفرنگ برداشت کی، جس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی، جو زندہ ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، قبر خالی ہے، آج بھی اس کا نشان. وہ جا کے یروشلم میں دیکھے قبر اس کی خالی ہے. دنیا کے سارے معبود مر گئے، لیکن ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح زندہ ہے. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. کافی سارے مردے زندہ ہوئے ہیں لیکن وہ پھر مر گئے، لیکن ہمارا یسوع مسیح ابدالآباد زندہ ہے اور پھر آئے گا وہ. اور
इसी यीशु को जब इन आंखों ने, शागिर्दों की आंखें, दुनिया की आंखों ने आसमान पर जाते देखा, और कलाम यही फरमाता है कि वो यीशु फिर इसी तरह आसमान से वापस आएगा। पैगाम, मैसेज इस इवेंट के वक्त, इस दिन के वक्त, आसमान पर उठाए जाने के वक्त सबसे बड़ा पैगाम क्या है? सबसे बड़ा पैगाम इसमें यह है कि ही विल कम बैक, ही विल रिटर्न, वो वापस आएगा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा पैगाम यह है, बहुत बड़ी वार्निंग है कि अब की बार जब वो आएगा ना, अब वो जो उसने हमें मर्सी और ग्रेस ऑफर की है ना, वो जमीन पर रहते, जब तक वो जमीन पर था और आज तक, जब तक हमारी जिंदगी है, हमारा सांस है, हमारी जिंदगी चल रही है, हमें वो मर्सी, वो ग्रेस हासिल है। हम उस मर्सी को, उस ग्रेस को रिसीव कर सकते हैं, उसके रहम, उसके फजल के अंदर आकर उसको हासिल कर सकते हैं। उस यीशु मसीह को, उस कुर्बानी को हासिल करने के बाद, जब हम उस कुर्बानी को हासिल कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, उसके पाक लहू से धुल जाते हैं, उस रहम और उस फजल की बदौलत हम हमेशा की जिंदगी में स्टेप इन कर जाते हैं। वो आज भी अवेलेबल है और उतनी देर तक अवेलेबल है जब तक मेरी ये सांस चल रही है, जब तक आपकी सांस चल रही है। अगले लम्हे का कोई पता नहीं, ये सांस बंद हो जाने के बाद कोई पता नहीं। लेकिन याद रखें कि ये यीशु मसीह जो आसमान पर उठाए गए हैं, जिसको हम जाते देख रहे हैं, शागिर्द देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, वो इसी तरह जब वापस आएगा कि अब की बार वो एक नई डायरेक्शन, एक नए काम, एक नए अथॉरिटी के साथ आने वाला है। अब की बार वो जो उसने रहम से भरा हुआ काम करना था कर चुका, जो उसने फजल का दौर, फजल का जमाना जिसमें हम चल रहे हैं, इस जमाने को उसने एक नई डायरेक्शन पर लेकर जाना है, अगले कदम पर लेकर जाना है, और अब की बार वो जजमेंट करने आएगा। वार्निंग ये है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर आवरसेल्फ। आज के दिन, 40वें दिन जब वो आसमान पर जा रहा है, तो आज के दिन मेरे लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए यह पैगाम है कि हमें तैयार होना है कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा और वो हिसाब लेगा, वो जजमेंट करेगा, वो भूसे को अलग करेगा, वो रासबाजों को बदकारों से जुदा करेगा, वो अपने बिलीवर्स, अपने ईमानदारों को बादशाही के फर्जंद बनाएगा और उस दाखिल करेगा उस बादशाही में। लेकिन जो अंधेरे के फर्जंद है, जो शैतान के पैरोकार हैं, जो झूठ के पैरोकार हैं, वो अलग किए जाएंगे और हमेशा की आग में फेंक दिए जाएंगे। वो जजमेंट करने आएगा। दिस टाइम इज नॉट द सेम जीसस इन टर्म्स ऑफ हिज मिशन, इन टर्म्स ऑफ हिज मिशन। पहला उसका सेम जीसस, बट हिज मिशन वाज टू रेस्क्यू अस, टू गिव अस अ साल्वेशन, हमें बचाना था। बट नाउ उसका गोल और है कि मैंने जो काम किया था, मेरे इस कुर्बानी के ऊपर किसी ने तवज्जो दी है, इसको किसी ने कीमती जाना है, मेरे इस लहू की कदर की है किसी ने इसको कबूल किया है, मेरी निजात के इस पैगाम को किसी ने इग्नोर तो नहीं कर दिया, रायगा तो नहीं जाने दिया, किसी ने वैल्यू भी किया है कि नहीं की, किसी ने इसको रिसीव भी किया है नहीं, इस निजात के पैगाम को, इस खुशखबरी के पैगाम को जो मुफ्त में मिली है, जिसके लिए मुझे और आपको जान नहीं देनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, कोई मुझे जतन नहीं करना पड़ा। क्या इस बड़े काम को किसी ने रिसीव किया कि नहीं किया? इस दफा अब की बार वो जब आएगा तो एक नए गोल के, नए काम और नए अथॉरिटी, नए काम के लिए वो आ रहा है। और वो काम उसका यह है कि वो जज करने आ रहा है, वो इंसाफ करने आ रहा है कि मेरे बेटे और बेटियां, मेरे ईमानदार लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दिन एक नई डायरेक्शन लेकर आया चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, और शागिर्दों के अंदर एक नई उम्मीद, नई ताकत, कुव्वत भर दी उसने।
अगले 10 दिन तक जब शागिर्द ठहरे रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, खुदावंद से मांगते रहते हैं, तो खुदावंद उनको फिर वो कुव्वत देता है, वो ताकत देता है, वो पाक रूह की अनॉइंटिंग से, मसा से भरते हैं और दलेरी से भरते हैं। वो लोग जो डरे हुए थे, वो लोग जो गमगीन थे, वो इस कदर तैयार हो जाते हैं कि सब के सब शागिर्दों ने जाने कुर्बान कर दी, लेकिन यीशु के पैगाम से हरगज नहीं मुड़े, अपने आप को सेक्रीफाइस कर। आज हम क्या सेक्रीफाइस कर, अब हम अपने लिए चर्च में आना टफ हो चुका है हमारे लिए। सेक्रीफाइस की बात करूं, कुर्बानी की बात कर रहा हूं, वो अपनी जाने तक कुर्बान कर रहे हैं। हम खुदावंद के पैगाम को फैलाने के लिए गली बाजारों में किस तरीके से शेयर कर रहे हैं? क्या नेक्स्ट टाइम जब हम इस इवेंट को करेंगे तो चर्च रेडी होगा कि गलियों बाजारों में जाके यीशु को क्लेम करें और जाकर यही गीत गाएं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे? शागिर्दों ने तो जाने दे दी, मैं और आप क्या कर रहे हैं उस खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या सिर्फ बैठे हुए हम? आज का दिन, ये असेंशन डे इज अ विक्टोरियस डे, फातेह दिन है। इसमें विक्ट्री का पैगाम है, मैसेज ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री क्या है? शैतान ने हर तरह से चारा किया, कोशिश की, टेम्पटेशन में भी आकर, विल्डरनेस में जाकर उसने भी हर तरह से आजमाया कि किसी ना किसी तरीके से इसको गिरा दे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फातेह रहा। उसने मौत को भी यूज किया, कोशिश की, जुल्म किया, मारा, नेजा लगाया गया, कोड़े मारे गए, सलीब दे दिया, नेल डाउन कर दिया गया, पांव हाथों को नेल डाउन कर दिया गया, हर तरह से जुल्म और सितम किया गया कि ये मर जाएगा, लेकिन मौत भी ना हरा सकी। और खुदावंद यीशु मसीह ने हिमसेल्फ डिक्लेयर किया, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कि मौत उसको हरा ना सकी। ये मौत का भी इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और फिर कब्र में जाकर तीसरे दिन गल जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, हड्डियां तक सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये कब्र भी उसको ना रोक सकी, वो पत्थर भी उसको ना रोक सका, कोई चीज उसको रोक ना सकी। ये आज के दिन ये चीजें पीछे जब हम जाकर देखते हैं, ये सारे उस बड़े विक्ट्री के मैसेज को, पैगाम को हमारे लिए आज इंकरेजमेंट देती हैं, होप देती हैं कि वो पहले भी फातेह है, उसने कब्र और मौत पर फतेह हासिल की है, और जो कोई उसके पीछे चलेगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, वो भी फातेह है, क्योंकि उसने कहा मैं गालिब आया हूं, तुम भी गालिब आओगे। इसलिए असेंशन डे इज अ मैसेज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि वो जमीन पर बड़ी आजी, इंकसारी, हम्बल, एक फ्रोतन, एक बेबी की, बच्चे की सूरत में बैतलहम में आया, और उसने इंसानों की शक्ल इख्तियार की, हमारे गुनाहों को उठा लिया, क्रॉस पर नेल डाउन कर दिया, और कब्र और मौत पर फतेह हासिल करके 40 दिन तक हमारे दरमियान, हमारे घरों में हमारे साथ वो जिंदा होकर हमारे साथ रहा। गवाहियों पे गवाहियां, टेस्टिमनी पे टेस्टिमनी, के लोगों ने उन्हें रूबरू देखा, लोगों ने उनके साथ फेलोशिप की, खुदावंद यीशु मसीह के साथ फेलोशिप की, और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने रूबरू देखा, और ये विक्ट्री हुई कब्र की भी, मौत की भी, गुनाह की भी, शैतान पर भी ये फतेह हुई। और आज असेंशन डे के मौका पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फॉरएवर, हमेशा के लिए रेन कर रहा है, राज करता है, वो उसका हमेशा के लिए बादशाही है, और वो अपने बाप के दानी तरफ तख्त पर बुराजमा है। इट्स अ मैसेज ऑफ विक्ट्री। एज अ बिलीवर दिस गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस। ईमानदारों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, हमें ये उम्मीद मिलती है, हमें ये गारंटी, एश्योरेंस मिलती है कि हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, निजात दहिंदा विक्टोरियस है, और वो इस जमीन के बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाहों का बादशाह। ही विल कम अगेन, द सेम जीसस विल रिटर्न अगेन।
फरिश्तों ने आकर क्लियरली ये पैगाम दिया, ये प्रॉमिस दे दिया, वादा कर दिया कि ये यीशु जिसको तुम जाते देख रहे हो, इसी को तुम वापस आते देखोगे, कोई और दूसरा नहीं, नॉट अनदर सेवियर, कोई और प्रॉफिट, कोई पैगंबर नबी नहीं, बल्कि यही। यीशु मसीह के बाद कईयों ने क्लेम किया कि वो भी नबी है, और खुदा यीशु मसीह ने कह दिया था कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, बथेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है। यकीन ना करना, गुमान ना करना, क्योंकि इब्ने आदम का आना ऐसे ना होगा। लेकिन उसने वार्निंग दिया कि वो गुमराह कर देंगे लोगों को, लोग यकीन भी कर लेंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बार बार खबरदार किया कि ना, इब्ने आदम का आना ऐसे होगा जैसे बिजली पूरब से पश्चिम को कूद कर आती है, ऐसे इब्ने आदम का आना। लोग अपने काम काज में, शादी ब्याह में लगे होंगे, रोजमर्रा के कामों में लगे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई शादी ब्याह कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई घर में कोई चक्की पीस रही होगी, कोई कुछ काम कर रहा होगा। उसी वक्त उनमें से दो पीस रही होंगी, एक को उठा लिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा, एक हल चला रहा होगा, उससे उठा, खेत में काम कर रहा उसको उठा रहा, बिजनेस कर रहा होगा। तो ये आज हम देख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, अर्थक्वेक, जलजले, भूचाल आएंगे, आसमान के तारे गिर जाएंगे, रोशनी बंद हो जाएगी, सूरज तारीक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग रोना शुरू कर देंगे, पछताना शुरू कर देंगे, हाय कौन बचाए हमें इस बर्रा के गजब से। कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। सारी डिटेल खुदा यीशु मसीह ने की, और आज ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। टाइम इज नियर, खुदा यीशु मसीह का आना नजदीक है। ये जो प्रॉमिस है ना, जो एंजल्स आकर कहते हैं कि सेम जीसस विल रिटर्न अगेन, कोई दूसरा नहीं, कोई और नबी पैगंबर नहीं, कोई और सेवियर नहीं, सेम सेवियर विल रिटर्न अगेन। हमारा खुदा यीशु मसीह वापस आंखों के सामने विजिबली आएगा और हम उसे देखेंगे। पहले जब वो आया था बड़ी आजी इंकसारी के साथ आया था, लेकिन अब की बार जब वो आएगा तो जलाल और हशमत के साथ आएगा। पहले जब वो आया तो एक निजात दहिंदा बनकर आया था, अब की बार वो जब आएगा तो एक रासबाज जज बनकर आ रहा है। वो पहले वो जब आया तो उसने हमें अपना फजल दिया, ऑफर किया, अपने रहम को ऑफर किया, उसने हम पर तरस खाया और हमें बचाया। अब की बार जब वो आएगा तो अपनी रासबाजी को स्टैब्लिश करने आ रहा है, लोगों को एक रासबाज जमात में शामिल करने के लिए आ रहा है। दुनिया उसको एक मर्सीफुल, एक रहम से भरे हुए बाप के तौर पर, खुदावंद के तौर पर देख रही है, लेकिन अब की बार दुनिया इग्नोर कर रही है कि अब की बार वो वैसी अथॉरिटी दोबारा एक्सरसाइज नहीं करेगा, बल्कि अब की बार वो जुदा करने आ रहा है अपने लोगों को, जो उसके बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनको वो उठाने आ रहा है, उनको लेने आ रहा है, उनको बादशाही का फर्जंद बनाने आ रहा है, जिसका उसने वादा फरमाया। वो अपने वादों का सच्चा है ना, कि मैं तुझे अपने पास ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा। वो वहां पर ले जाने के लिए हमें आएगा, वहां पर दाखिल करेगा, हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए आ रहा है। असेंशन डे, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। हमें अपने आप को तैयार, इस प्रेपरेशन का दिन है, इट्स अ डे ऑफ प्रेपरेशन। सबसे बड़ा सवाल आज यही है। लोग पूछते हैं व्हेन, शागिर्दों ने भी पूछा कब, यीशु मसीह का आना कब होगा। आज भी लोग सवाल करते हैं व्हेन विल जीसस रिटर्न कम बैक, व्हेन ही विल कम बैक। लेकिन सवाल का जवाब डिफरेंट होना चाहिए, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि आर वी रेडी। हम ये सवाल ना करें कि यीशु मसीह कब आएगा, कहां आएगा, कैसे आएगा। सवाल यह होना चाहिए कि क्या मैं तैयार हूं उसकी आमद के लिए, उस दिन के लिए
جو بڑا ہولناک اور غضبناک ہے، اس دن کے لیے میں تیار ہوں یا نہیں؟ آج کی دنیا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سٹف سے بھر گئی ہے، ڈسٹریکشن سے بھر گئی ہے، میوزک سے بھری ہوئی ہے، پروگرام سے بھری ہوئی ہے، تکبر آ چکا ہے، بہت تکبر نے جگہ لے لی ہے، جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، نفرت سے بھری ہوئی ہے، محبت سے خالی، طبعی محبت سے خالی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، ماں باپ، یہ وہ، کوئی محبت کا ایلیمنٹ نہیں نظر آ رہا، بس نفرت، جھوٹ، لڑائیاں، جھگڑے، تکبر، گناہ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ دنیا ہر وقت ان چیزوں میں دسی ہوئی ہے۔ روحانی طور پر ہم بہت ہی کیئرلیس ہو چکے ہیں، روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر پا رہے۔ کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، میتھیو میں لکھا ہوا ہے، اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ یہ دنیا کے کاموں سے، اپنے دھندوں سے ہمیں اپنا فوکس ہٹا کر ذرا یسوع مسیح پر لگانا ہوگا۔ ایک دم سے آپ اپنے اندر ایک نئی ڈائریکشن ریسیو کریں گے۔ پاک روح آپ کو کنوکٹ کرے گا، میں کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں، کن باتوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، کن چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد، میں کس لیے کر رہا ہوں۔ پاک روح آپ کو کنوکٹ کرے گا اور ایک دم سے آپ کے اندر خدا کا پاک کلام اثر کرنا شروع کرے گا۔ پاک کلام اثر کرتا ہے، وہ جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں آتا، وہ اثر کرتا ہے۔ ہمیں ایک ریپینٹنٹ لائف گزارنی ہے۔ وی نیڈ ٹو بی لیو اے ریپینٹنٹ لائف، توبہ سے بری ہوئی زندگی، معافی کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ہمیشہ پاکیزگی میں چلنا۔ وی نیڈ ٹو بی a person who always walk in holiness۔ پاکیزگی میں چلیں، برے کاموں کو چھوڑ کر، ترک کر کے ہمیشہ پاکیزگی میں چلتے رہیں۔ ہمیں دعا میں بڑے رہنا ہے، ہر وقت دعا میں مشغول رہنا، کیونکہ اس گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے یسوع مسیح واپس آ جائے۔ ہر وقت تیار رہنا ہے۔ We need to be remain in prayer faithfully۔ We need to be ready to forgive others and forgive ourselves as well۔ ہم اپنے آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے۔ ہمیں خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ We need to obey the commandment of the Lord۔ جو خدا کے حکم ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور we need to be ready to serve the church, the community, the family faithfully۔ ایک سرونٹ کے طور پر، ایک خادم کے طور پر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، تکبر نہیں بلکہ ایک خادم کے طور پر۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی لائف کو جب میں دیکھتا ہوں، ہم سارے دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا مرتبہ، آنر خدا باپ نے کب دیا؟ کس وقت ہم پڑھتے ہیں؟ جب فلپین چیپٹر 2 میں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں وہاں پر؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اپنے آپ کو پست کر دیا، اور پھر اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ موت، بلکہ صلیبی موت، صلیبی موت گوارا کی، اپنے آپ کو خادم کی صورت میں پیش کیا، ایز اے سرونٹ پیش کیا۔ اس سرونٹ ہوڈ کا آنر خدا کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے خدا نے بھی پھر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ جب خدا یسوع مسیح ایز اے سرونٹ نظر آتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے بار بار ہمیں کہا ہے جو بڑا بننا چاہیے اپنے آپ کو چھوٹا کرے۔ جب ہم سرونگ سپرٹ میں آ کر خدا کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں،
خدا ہمیں آنر کرتا ہے. دنیا ریکگنائز کرے نہ کرے, دنیا آنر کرے نہ کرے, لیکن خدا باپ عزت کرتا ہے, خدا باپ آنر کرتا ہے. اور خداوند نے, باپ نے اپنے بیٹے کو ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا, آسمان کا, زمین کا, یا زمین کے نیچے پانیوں کا, ہر ایک گھٹنا اسے سجدہ کرے گا. اور جب ابن آدم کا آنا ہوگا نا, ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. وہ جنہوں نے قبول بھی نہیں کیا وہ بھی کہیں گے خداوند ہمیں معاف کر دے. بٹ دیٹ ٹائم از اوور, دیٹ ٹائم از اوور. اب وقت ہے, دس از دا ٹائم. اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دے دیں, اپنی زندگی اسے دے دیں. ان لوگوں کے لیے آج کا یہ لمحہ, آج کا یہ دن, آج کا یہ مومنٹ, آج کا یہ پیغام, جب وہ آسمان پر جا رہے ہیں اور فرشتے آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں, یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو واپس آئے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو ان پرپیئرڈ ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو پرپیئر کر لیں, اپنے آپ کو تیار کر لیں. کیونکہ اس کے تخت کے سامنے نہ تو میرا کوئی ٹائٹل مجھے بچا پائے گا, نہ میرا کوئی رتبہ مجھے بچا پائے گا, نہ میری دھن دولت اور فیم مجھے بچا پائے گا, نہ میری کوئی اچیومنٹ مجھے بچا پائیں گی. بلکہ اس تخت کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے آگے ایک ہی ہے, وہ برے کا لہو ہے, اس کا لہو ہے جو مجھے بچائے گا. اس لہو کو لینا ہے, اس کو قبول کرنا ہے, اور پھر ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے. ان پرپیئرڈ لوگ تیار رہیں کہ وہ کہیں کہ خداوند آج کے دن میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں, آج کے دن میں اپنے آپ کو پرپیئر کرتا ہوں, آج کے دن میں اپنی لائف کو کریکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ سے خدا میں تیرے حکموں کے مطابق چلوں گا, میں پورے دل, پوری جان, پوری طاقت سے اے خدا تیری عبادت کروں گا, تیری بندگی کروں گا. میں چرچ میں بیٹھے ہوئے اے خداوند صرف اور صرف تجھ پر فوکس کروں گا. میں گھر میں چلتے پھرتے اے خداوند تجھ پر فوکس کروں گا. تیرے کلام کی باتوں پر میرا دھیان رہے گا, میرا دھیان کسی اور چیزوں پر نہیں ہوگا. میں ہر وقت, کچھ لوگ فزیکلی موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا دھیان ہمیشہ پیچھے ہی ہوتا ہے. میں آج اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا بٹ خدا نے وقت دیا تو پھر کریں گے. لوط, اس کی بیوی, اس کی سٹوری کو ہم جانتے ہیں کہ فزیکلی تو وہ نکل رہی تھی وہاں سے, بٹ اسپرچولی, ایموشنلی ہر ایک چیز اس کی واپس اسی جگہ تھی, سدوم اور عمورہ میں. ہم سم ٹائم آگے فزیکلی جسمانی طور پر بڑھ رہے ہیں, ہم ہیکل میں بھی بیٹھے ہیں, چرچ میں بھی بیٹھ رہے ہیں, لیکن ہمارا فوکس پیچھے سدوم اور عمورہ کی طرح بڑھا رہا ہے. ہم ہر وقت پیچھے سوچے, کسی اور باتوں میں لگے ہوئے, مگن ہیں کسی اور چیزوں میں, اور فکریں میں دبائی ہوتی ہیں, لیکن چرچ خدا کی پریزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ ہمارا فوکس کسی اور جگہ. ہم کسی اور, ہوتا کیا کہ ہمارا جو روح کا کنیکشن ہوتا ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوتا. کیونکہ جہاں پر ہمیں لذت ملتی ہے نا, میں لفظ لذت کا میں یوز کرنے لگوں, ہمارا ہر وقت اس طرف ہی جانا, ہمارا دل ادھر ہی لے جاتا ہے ہمیں, کیونکہ وہاں پر ہمیں ایک عجیب قسم کی لذت اور شادمانی محسوس ہوتی ہے. اگر ہم فون پر ہیں تو ہمیں اس میں سے بہت ایک ایسے قسم کا کنیکشن, ایک ایسی قسم کی اٹریکشن مل رہی ہے کہ میرا ہر وقت فوکس اس میں ہے, بھلے میں خدا کی حقل میں کیوں نہ بیٹھوں, تو میں دماغ میرا ادھر بیٹھا ہوا ہے, او یہ کام, وہ کام, یہ چیزیں چل رہی ہیں, دماغ میرا کسی اور جگہ لذت محسوس کر رہا ہے اور میرا فوکس ہی ادھر ہے. میں ایکچولی اسی جگہ پر رہ رہا ہوں حالانکہ میں بیٹھا چرچ میں ہوں. اس لیے we need to correct ourselves, we need to prepare ourselves, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا آنا نزدیک ہے. ہمیں پورے دل, پوری جان, پوری طاقت سے اپنے خدا کو مبارک کہنا, اس کی عبادت, اس کی بندگی کرنی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا منجی, ہمارا مالک, ہمارا خداوند پھر سے آنے والا ہے. ہمارے پاس امید ہے, ہمارے پاس کوئی غم کرنے والی چیز نہیں ہے, دکھی ہونے والی چیز نہیں ہے, بلکہ ہمیں خوشی اور شادمانی اور امید میں زندگی گزارنی ہے. اور ہمارے پاس یہ وعدہ ہے کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ واپس لے جائے گا.
हमें किसी डर और खौफ में जिंदगी बसर नहीं करना, बल्कि हमने रूहानी तौर पर जागते हुए और इमोशनली तौर पर खुदा के पाक रूह के अलाइन होकर आगे बढ़ना है। जब आप खुदा के पाक रूह के अलाइन होकर अपनी लाइफ को गुजारेंगे, यू विल सी अ डिफरेंट इन योर लाइफ। आप उसके जजमेंट के डे के लिए तैयार हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इससे पहले कि हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ जाएं, मैं पास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एक अजीज़ हैं, ट्रॉय भाई हैं, और इज़ाबेल उनकी वाइफ, उनकी फैमिली के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनके फादर को डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है एंड ही माइट बी गॉन टुडे, सो प्लीज़ प्रे फॉर दैट फैमिली। और उनकी मामा भी आईसीयू में हैं, तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए उनके लिए दुआ कीजिएगा। आइए हम खुदा उनके ज़रूर अपनी दुआएं और मुनाजात रखें। इसके साथ ही हम आसफ भट्टी के लिए दुआ करेंगे। वो फेसबुक पर हमारे रेगुलर व्यूअर्स है और हार्डशिप से गुजर रहा है, बीमार भी है, तो वो कह रहा है उसके लिए दुआ करें। अनीर के लिए उसके स्कूल की स्टडी के लिए दुआ करेंगे। पास्टर यूनुस गिल ने कहा कि उसके लिए, उसके ख़ानदान और बिज़नेस कारोबार के लिए भी, और बॉबी के हार्ट डिजीज़ के लिए दुआ करेंगे। शमीम और शेरल उनकी हीलिंग के लिए, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। इस तरीके से वेडनेसडे हमारा जो प्रेयर सेशन है मिड वीक का, उसके लिए दुआ करेंगे। हमारे पास चंद फैमिली आती हैं, वो रेगुलर हैं, खुदा का शुक्र है, लेकिन अगर हम सारे आएँ तो क्या ही बाबर की चीज़ होगी। एक दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, एक दोबारा से हम कुव्वत का लिबास दोबारा से पहनते हैं, रूह से और ज़्यादा भर जाते हैं, ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। बाजी क्या नाम है? आइला, नाइला के लिए दुआ करेंगे, वो बीमार है। रसल भाई के लिए दुआ कर रहे हैं हम, और उनके लिए भी दुआ करेंगे। और हमारा जो मिशन वर्क है, ये जो हम खुशखबरी के पैगाम को फैला रहे हैं, इसके लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा हमें क़ुव्वत बख्शे, दिल की तैयारी बख्शे, ताकि हम इस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ। सदफ के लिए दुआ करेंगे। सदफ दीदी, शी इज़ अबाउट टू डिलीवर, और वो काफ़ी वीकनेस का शिकार है, उसके लिए भी दुआ करेंगे। और सुबह फ़ोन आया था डॉक्टर मोपार्टी का कि उसने कहा उसकी फैमिली के लिए, उसके बिजनेस लोन्स के लिए, स्पेशली ख़ानदान के लिए दुआ करें। ही इज़ गोइंग थ्रू वेरी टफ, तो उसने कहा कि प्लीज़ चर्च मिलकर मेरे लिए दुआ करें। इन सारे नामों को हमने पुकारा है, याद किया है। एक ही काम हम कर सकते हैं, हम खुदा के वादे को क्लेम करते हैं, और हम जानते हैं कि खुदावन दुआओं को सुनने वाला है। हमारा खुदा जिंदा है, वो कब्र में नहीं है। दुनिया के खुदा मर गए, माबूद मरे हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा है। वो जागता है, वो ऊँघता नहीं है, वो हमारे साथ है, हर लम्हे हमारे साथ है। लेकिन जब हम ईमान के साथ पुकारते हैं, ईमान के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमारे लिए वैसा ही करता है। वो प्यार करता है ना हमसे। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां बड़े ईमान से, फ़ख्र के साथ ये कह रही हैं कि हमारा खुदावंद ये कर देगा, तो चलो मैं कर देता हूँ इनके लिए, क्योंकि जो हम ईमान के साथ एग्री करेंगे वो आसमान पर एग्री हो जाएगा। आमीन। आइए इन नामों को खुदा के हज़ूर रखते हैं। खुदा बाप, मैं इस चर्च के साथ मिलकर, तेरे बरगज़ीदों के साथ मिलकर, तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर, और इन अजीज़ों के साथ मिलकर जिनके नाम पुकारे गए हैं, तेरे सामने मिन्नत करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा कादर हाथ बढ़े, रहम वाला हाथ बढ़े, तेरा फजल इन्हें घेर ले खुदावंद, तेरी कुदरत इन्हें घेर ले खुदा। इनकी बीमारियां जाती रहें, इनकी फाइनेंशियल हार्डशिप जाती रहें, शैतान के सारे मंसूबे इनके ज़िंदगियों से कैंसिल कर दिए जाएं। इनके ऊपर तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं, सर से लेकर पांव तक खुदा, एक एक नाम को जो तेरे सामने लिया गया है खुदा, तेरे पाक रूह की कुदरत से खुदावंद, तेरी अथॉरिटी से खुदावंद, मैं इन सब के लिए ए खुदावंद डिक्लेयर कर देता हूँ शिफा को, मैं रेस्टोरेशन को
डिक्लेयर कर देता हूं, मैं बहाली को डिक्लेयर कर देता हूं, मैं तेरी कुदरत को मांग लेता हूं खुदावन, इनके जिस्मों को शिफा मिल जाए, इनके बदनों को खुदावन शिफा मिल जाए, इनकी रूहों को शिफा मिल जाए, इनकी जिंदगी से गुनाह जाते रहें, इनकी जिंदगी में खुदावन तेरी कुदरत बढ़े, इनके जिंदगी में खुदावन ऐ खुदावन इनके घरों में तेरे नाम की गवाही खड़ी हो जाए, और ये लोग उठ के खड़े होकर कौमों में, उम्मतों में, मजमा में खड़े होकर कह दें, ऐ खुदावन डिक्लेयर कर दें कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। आसिफ को, अनीर को, पास्टर यूनिस को, बॉबी को, शमीम और शेरिल को, मिशन वर्क को, और खुदावन डॉक्टर मुपाडी को, नाइला को, और एक एक जिंदगी को यहां पर है, ऐ खुदा मैं तेरे पाक इख्तियार को लेकर इनकी जिंदगी में डिक्लेयर कर देता हूं विक्ट्री को, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला विक्टोरियस है, हम भी विक्टोरियस हैं। ऐ खुदा बाप, ये तेरे नाम की गवाही का वसीला बने। एक एक जिंदगी जो यहां पर है, ऐ खुदा हमारे अंदर जो भी छुपी चीजें हैं तू वाकिफ है। ऐ खुदा हम मिन्नत करते हैं कि हमारी सोचें अलाइन हो जाएं, मोहब्बत से भर जाएं, तेरी खुशी शादमानी के रिसीव करते हुए खुदा हम दूसरों के लिए खुशी और शादमानी का वसीला बने। खुदा एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, हम मिलकर खुदा तेरे नाम की गवाही का वसीला बने। तेरे अजीजों, बेटों, बेटियों के लिए जो तेरे हैकल में, तेरे घर में आए हैं, बरकत मांगता हूँ खुदा, ये अपने घरों से निकल कर आए हैं। खास तौर पर मैं खुदावन मिन्नत करता हूँ सिस्टर एजबल के पेरेंट्स के लिए, ऐ खुदा जो इस वक्त इंतहाई बीमार हैं, उसके फादर के लिए जो इस वक्त ऐ खुदावन जिंदगी की कश्मकश में है। हम नहीं जानते, हम तेरी मर्जी के सामने सरेंडर करते हैं। हम जानते हैं जो तू करता है वो अच्छा करता है, जो तू करता है भला करता है। इंसान होते हुए हम ऐ खुदावन अपने लव्ड वन, प्यारों के लिए हमेशा कहते हैं खुदावन ये कभी जुदा ना हो। हम भी मिन्नत करते हैं खुदावन, इंसान होते हुए खुदावन तेरा रहम हो तो ये सब कुछ मुमकिन है। तू तो मुर्दा को जिंदा कर देता है खुदा। हम तेरी रहमत को मांगते हैं उस घराने के लिए, दोनों के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो इस वक्त एक बीमार है। मैं तेरी रहमत को मांग लेता हूँ, तेरे फजल को मांग लेता हूँ, तेरी हीलिंग को क्लेम करता हूँ, और खुदा दुआ करता हूँ वो उस घराने के ऊपर तेरा फजल पड़े। अपने बच्चों के साथ होना, कुव्वत से भरना, ताकत से भरना, ताकि वो खुदा तेरी मर्जी के सामने सरेंडर करते हुए आगे बढ़ें। तेरा शुक्र करता हूं कि हम जानते हैं कि जितना वक्त यहां पर हमारा है, इसके बाद एक हमेशा की जिंदगी है हमारे पास। इस उम्मीद के लिए, इस बड़े पैगाम के लिए, इस बड़े वादे के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजार हूं आज के पैगाम के लिए। हमारा खुदावन फिर से आने को है। इनफैक्ट वो हमारे साथ है, लेकिन अब की बार वो दूसरे रूप में आ रहा है। हमें तैयारी की रूह बख्श देना खुदा, मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा बाप, इस हदिये और नजराने को भी तेरे सामने रखता हूँ। तेरे बच्चों ने तेरे ही दिए हुए में से तेरे हुजूर लुटाया है खुदा, ये सब कुछ तेरा है। मैं तेरे वादे को क्लेम करता हूँ और इनके लिए बरकत मांगता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन इनके खत्ते भरे रहें, आसमान के दरीचे खुलकर इनके घरों में निछावर हों और इन्हें बरकत पर बरकत मिले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम खड़े होकर खुदावंद की इसकाई दुआ में शामिल होंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात हमारे ख़ानदानों के साथ, पाक कुलिया कलीसिया के साथ, इस मुल्क अमेरिका, हमारे बैक कंट्रीज, फेसबुक घराना चर्च कलीसिया के साथ हमेशा होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और याद रखें, दिस सैटरडे 9 बजे अगर हम निकल जाएं तो 8:45 तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे हम मिलकर। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जून का पहला जो आ रहा है हमारा
संडे जो आ रहा है, उस दिन हमारे पास एक अफ्रीकन पास्टर, लेडी पास्टर और 2 पास्टर आ रहे हैं. वो हमारे पास 2 दिन के लिए होंगे. वो तो चाह रहे हैं 3 दिन के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन मैं उनसे बात करूं कि 2 दिन हम करेंगे, सैटरडे एंड संडे. उन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी है. खुदा ने उन्हें डिलीवरेंस की, हीलिंग का गिफ्ट दिया हुआ है. और मेरे पास वीडियो विल शेयर कि सैटरडे और संडे 2 दिन हम इबादत रखेंगे उनकी. वो दोनों जो खादम हैं बड़े अनॉइंटेड हैं. खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी हुई है. और अनिमेश उनके चर्च में जा चुके हैं और उनके साथ राब्ते में हैं. और वो हमारे साथ होंगे फर्स्ट संडे जो जून का आ रहा है, 6 और 7 और 8 आई बिलीव, राइट? 7 और 8, 7 and 8, 6 and 7 हमारे साथ होंगे. God bless you everyone.